हरियाणा और पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के मुद्दे पर गुरुवार को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे की कड़ी आलोचना की। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के कदमों की आलोचना करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी दी, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में अमरिंदर सिंह पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि वे किसानों को बरगलाना बंद करें। मनोहर लाल ने कहा कि अगर एमएसपी में कोई भी दिक्कत पेश आती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। इस बीच हरियाणा के कई जिलों में पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई। इतना ही नहीं, वहां आने जाने वालों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़ रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। इस विषय पर कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी और अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों पर बल प्रयोग की कड़ी आलोचना की। Look, we've got a constitution in this country, or don't we have one? If we have one, then that constitution clearly states you have freedom of speech, freedom of thought, freedom of action. And what the farmers here were agitating against the bills that they have brought. Now, you can't stop a person going to your capital city where parliament is and expressing their views. Why are you stopping them? Anytime you want, and there's an agitation, people have been allowed to go there and had it. Don't you remember the BJP agitation, which was a massive RSS one organized in Ramlila Madans? I remember that day when it was happening in Delhi. Why don't you allow the farmers go and to give their views? एंड से कि हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं या खिलाफ नहीं है, जो भी उन्होंने देना है वहां करें, पर उनको रोकना इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ दिस कंट्री. दिस आई डू नॉट अग्री विद. I think the Haryana government should have just allowed them to go, and Delhi government should give them space to go and sit down and make their point of view, and then they'll come away. But if you try to stop them, then every reaction has a counter reaction. And if there are youngsters by the thousands in these, I think they have to look at this issue of MSP. They say yes, MSP is going to go, all right, to convince the farmer, then put it through in your Food Security Act or something like that. You can amend that act. If you don't want to make the bills, amend the bills that you've made, then you can bring them into the Food Security Act and say that the MSP is there for good. That will be some soothing effect. But the other, the APMC Act, you say is not going to change. Fine, that is going to remain there. Put it again in some legal form, some constitutional form. And then also the other grouses that they have, make them sit with you. Now, you called a meeting on the 3rd. I hope the farmer community, the leaders will go and meet. I'm very keen that they go, because these things are not, by confronting the police, are not resolved. You have to sit across the table and you've got to come to an understanding with the leadership. And if the leadership has called you on the farmer unions, I've already sent a message to them that they must go on the 3rd and go and sit there. But they will, if you have these sort of provocation when the police is firing tear gas and all, then they must start having second thoughts. So what has happened has happened. Now I think for the future, up till tomorrow, day after, whenever it is there, they should allow them to go and sit down. And as it is, they've broken through all the barriers. हरियाणा की गठबंधन सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। जिस तरह से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, और हैरानगी की बात यह है कि किस तरह से किसान भाइयों के ऊपर जो है वाटर कैनन का प्रयोग करा जा रहा है। ठंड के मौसम के अंदर इस तरह सा अत्याचार किसान धरती पुत्र के साथ किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ एक लानत है सरकार के ऊपर, सच्चाई। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसान जो है, ये वाटर कैनन से डरने वाला नहीं है। इसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मांग करने के लिए दिल्ली आ रहा है। और इसलिए जो है, आप जानते हैं, सरकार जानती है कि कड़ाके की ठंड में भी और जो है भारी गर्मी में भी किसान जो है अपनी खेती करता है। तो ये वाटर कैनन की बौछार से जो है ये डरने वाला नहीं है, और इनका हौसला जो है सरकार नहीं तोड़ पाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और अभी भी सरकार को चेताना चाहती हूँ कि आप समझ जाइए, नहीं तो आने वाला समय जो है उसके लिए आपको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 48 घंटे पहले किसान मसीहा छोटू राम जी की जन्म जयंती पर
दिल्ली और चंडीगढ़ की सरकारों ने पूरे हरियाणा और दिल्ली के अंदर किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू की। रातों रात किसानों को तानाशाही तरीके से कर्फ्यू जैसे हालात में गिरफ्तार किया गया। क्या किसान आतंकवादी हैं? क्या किसान अपराधी हैं? क्या किसानों से अब दिल्ली दरबार को खतरा है? क्योंकि आज संविधान दिवस को किसान गांधीवादी तरीके से दिल्ली कूच कर 3 काले कानूनों को वापस रखने की मांग रखने वाले थे। और आज सुबह से क्या तांडव चल रहा है। सुबह से कहीं कंटीले तार लगाकर, कहीं कड़कड़ाती सर्दी के अंदर वाटर कैनन चलाकर, कहीं अश्रु गैस चलाकर, कहीं पत्थर रखकर, कहीं ईंट और रोडों से सड़कों को रोककर, कहीं गाड़ियां लगाकर और पूरे रास्तों को जाम करके किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, क्या किसान से दिल्ली दरबार को डर लगता है? क्या देश का पेट पालने वाला किसान आतंकवादी और अपराधी है? क्या किसान को संविधान दिवस पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए दिल्ली आने की इजाजत नहीं है? क्या दिल्ली की सरकार अब अंग्रेजी बरतानवी सरकार से भी ज्यादा जुल्म वाली सरकार बन गई है? याद करिए मोदी जी, जब किसान को दिल्ली के तख्त ने ललकारा है तो उस तख्त को किसान और किसान के बेटों ने बदल दिया है। आज फिर चंडीगढ़ और दिल्ली की सरकारों ने कंटीले तार, अश्रु गैस और रोड़े अटकाए हैं किसान को अधिकार मांगने पर। आपके भी सरकार के कफन में ये आखिरी कील का काम करेगी। किसान आगे बढ़ता जाएगा, किसान आगे चलता जाएगा। आप अश्रु गैस और वाटर कैनन से किसान को रोकना चाहते हैं? अरे किसान तो ठंडे ट्यूबवेल की धार से सुबह सुबह कुरला करता है, वो आपकी वाटर कैनन से रुकने वाला नहीं। काले कानूनों को वापस लीजिए, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए, किसान को न्याय दीजिए, वरना दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों का तख्ता इस देश का किसान पलट कर देगा। ये याद रखिए।